So hello guys, so today I'm back again, but from today I'm starting a small videos related to the basic, like the data structures we have in our C++ STL. So we are going to see today vector. Okay, so there are many inbuilt function in vector, so one by one today we will see all the, like in this video I will cover only the two basic function, push back and pop back, and in upcoming videos I will cover one by one other important inbuilt functions of vector. So let's start the video for today. Okay, so first today I will just uh, like for using the vector you need to include this hash include bits slash std plus h. So basically it will include all the you can say all the libraries that we want to include for implementing STL, like the data structures or already made. And this namespace is like used to if you are going to write this using namespace standard, so you don't need to write again and again std every time. Okay, so first I will create a vector. So this is a vector int and name it like v. Okay, so this is a vector. Okay, so basically vector is the, you can say, keyword, then int is the data type, and then v is your name of the vector. Okay, so like we will do we dot push back, and so here you can see I have done 4 pushback in the vector v. Okay, so if we want to print the vector, so basically here you can do like this. I vector v dot size I plus plus, then c out v of I, and here is this. Okay, and c out and tell. Okay, so first time I will compile it and run it. Dot VGO. Okay, so here you can see key all the elements 1 2 3 4 will get printed out with a space, and at the end it like see out and also line will change. Okay, so here you can see that. Okay, so basically vector is a container, and container you can understand like that कि मतलब कंटेनर आपका कोई भी ऐसा चीज़ जिसमें आप कुछ डाल सको बस, और डालने का टाइप है यहाँ पे इंट. ओके, तो जैसे आपकी बॉटल हो गया वो कंटेनर है, उसमें पानी तेल या कुछ भी आप लिक्विड चीज़ या कुछ भी सॉलिड चीज़ आप डाल सकते हो, तो इसको ऐसे समझो. तो दिस इज लाइक दैट. ओके, सो यू कैन पुट एनीथिंग, एंड पुश बैक इज अ इनबिल्ट फंक्शन. ओके, सो बेसिकली ये वेक्टर भी जो है ये स्टैटिक एरे को यूज़ करके इम्प्लीमेंट किया जाता है. सो दो टाइप से आप एरे को मतलब कहते हैं कि आप डिक्लेयर कर सकते हो सी प्लस प्लस में, स्टैटिक और डायनेमिक. तो वेक्टर जो है वो हमारा एरे को डायनेमिकली डिक्लेयर करके बनाया गया एक डेटा स्ट्रक्चर है. So these are not primitive, these are like you can say secondary data structure, or you can say कि these are made by the
यूजिंग द प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। ओके, तो अब इसमें ये फंक्शन है पुश बैक। तो पुश बैक जस्ट एक इनबिल्ट फंक्शन है जो कि आपके एलिमेंट को इसमें वन बाय वन एंटर करता जाएगा। ओके, जैसे पुश बैक 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। और इस ये डेटा स्ट्रक्चर मतलब आप कह सकते हो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नहीं है। मतलब जो भी आपका इनकेस इसमें जो भी ऑपरेशंस हैं जैसे पुश बैक हुआ तो वो हरदम आपके एंड में ला के अपेंड करता जाएगा, लेकिन जब आप पॉप करोगे तो वो बैक से ही उसको डिलीट करना चालू करेगा, पॉप बैक। तो इसमें ऐसा है कि वो एंड से ही आपका डिलीट करेगा। सो दिस स्ट्रक्चर, if you are taking an input, so it will add your numbers in the end, and if you pop back, so it will take out the element from the back itself। तो आप कह सकते हैं कि जो भी लास्ट इनपुट हुआ है वही आउट होगा। ओके, तो यू कैन से कि लीफो टाइप यू कैन से कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, तो इसमें इस तरह से है। एंड अब हम इसमें एक चीज़ लाइक पॉप बैक देख लेते हैं एक बार। वी डॉट साइज जो है वो आपको अपने वेक्टर का जो है साइज दे देता है। जैसे आप जब यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूँ सी आउट वी डॉट साइज इंडर, ठीक है, तो यहाँ पे जो आएगा आंसर वो 4 आएगा क्योंकि इसका साइज जो है वो 4 है। और क्या कहते हैं, जैसे कि अब मैं यहाँ पे वी डॉट पॉप बैक कराऊँगा और उसके बाद अगेन मैं इसका साइज प्रिंट कराऊंगा वी डॉट साइज। ठीक है, ये इसको मैं ऊपर रख देता हूँ। तो ये कुछ ऐसा हो गया है। और जैसे आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 और उसके बाद सी आउट आपका साइज प्रिंट हुआ है 4। उसके बाद आपका ये सी आउट वी डॉट साइज अगेन जब मैंने प्रिंट कराया तो ये आपका 2 प्रिंट हुआ है, बट एक्चुअली में इसमें 2 नहीं प्रिंट होना चाहिए क्योंकि मैंने पॉप बैक किया है 4 बार, तो सारे के सारे एलिमेंट डिलीट हो जाने चाहिए। एक सेकेंड, तो मैं इसके और ऑटो आई वी टी आउट आई, ठीक है, तो एक्चुअली में यहाँ पे हुआ क्या है कि जैसे हर बार जब हम हर बार क्या कहते हैं इंट आई इक्वल टू 0 और आई लेस देन वी डॉट साइज चला रहे हैं और वी डॉट पॉप बैक कर रहे हैं, तो हर बार हमारा जो वी डॉट साइज है वो एक एक कम होता जा रहा है। जैसे कि मतलब पहले पहले जब आप चलाओगे तो आपका वी डॉट साइज जो है वो 4 रहेगा, बट जब वी डॉट पॉप बैक हो जाएगा तो वो 3 हो जाएगा। और उसके बाद अगेन क्या कहते हैं वो आपका क्या कहते हैं
2 मतलब 3 हो जाएगा, और उसके बाद जब फिर आप अगेन चलाओगे तो वो 2 हो जाएगा, वी डॉट पॉप बैक करके, तो वी डॉट साइज आपका 2 हो जाएगा, और आई प्लस प्लस आपका ये क्या कहते हैं 2 हो जाएगा। तो उस टाइम पे दोनों बराबर हो गए तो ये लूप से बाहर आ जाएगा, और आपके स्टिल 2 एलिमेंट्स बचे रहेंगे। तो यहाँ पे ये हो रहा है। तो बेसिकली, और यहाँ पे जो मैंने ये लिखा है कि फॉर ऑटो आई इक्वल टू आई कोलन बी, तो ये इसको लिखने का एक शॉर्ट फॉर्म है, जिससे कि मतलब ऑटो आई से वो जो भी वी का डेटा टाइप है और उसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो ये मतलब एज ए वो बन जाएगा। जैसे अभी वी का जो डेटा टाइप वो इंट है, तो आई जो है वो एक इंटीजर की तरह बिहेव करेगा। और अगर यहाँ पे मतलब आप कुछ और लिखे रहते, जैसे मान लीजिए कैर लिखे रहते, तो वो अपने आप ही कैर की तरह बिहेव करता और वो आपके सारे एलिमेंट्स प्रिंट कर देता। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और इनकेस पॉप बैक में ऐसा है कि पॉप बैक आपका जो भी लास्ट एलिमेंट्स है वो डिलीट करता है। जैसे यहाँ पे जब मैंने चलाया तो 4 और 3 उसने डिलीट किया। तो यहाँ पे सिर्फ इतना, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। सो आई होप आपको ये पुश बैक और पॉप बैक समझ में आ गया होगा, और वी डॉट साइज, और ये एक तरीका है इस चीज़ को शॉर्ट में लिखने का। So this is all for today's like you can say my first tutorial video on vector. So अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया हो, in case you have any doubt related to this video, you can ask me in the comments. So this is all for today. Thank you for watching, and आप ये ट्यूटोरियल अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, so that वो भी कोडिंग लर्न कर सकें। So this is all. Thank you for watching my video.